So we are going to study about minimization of DFA. Minimization of DFA is required because whenever we try to make some finite state machine directly, it is not possible always that the designed DFA or designed machine, we will say, designed finite state machine is always the optimized one. Maybe it could consist some redundant states or some redundant transitions, which can in turn leads us to longer codes and longer execution time. So to remove these problems, we use this concept of minimization in our finite state machine, but this minimization will be done on DFA only, deterministic finite automata. So whenever we make a finite state machine, the better approach is to check for minimization once, because if minimization is possible in that machine, then आपका code जो है वो lengthy नहीं होगा and it will take less time to execute and give results. So हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, whenever you make a finite state machine, first of all you are going to check that whether it is a DFA, that is deterministic finite automata, or not. If it is not a deterministic finite automata, you have to convert it into the deterministic finite automata. And this thing is already taught by me in previous classes, that how to convert a NFA to DFA or NFA with epsilon move to DFA. So you will be getting either NFA or either NFA with epsilon move while designing any machine. So your first step will be to convert it into a DFA. Okay? And after converting it to DFA, you have to check that machine for minimization once. So if minimization is possible in that machine, you will get it in the answer, and then you can easily and effectively code that machine in any language. So I am explaining this concept by the help of one example. So you are seeing one problem, one machine in front of you, which we have to minimize it. So first of all, we have to check whether this machine is DFA or not. So from every state, we'll check for 0 transition and 1 transition. If a unique path is existing for 0 and 1 from each state, then we will say that yes, it is a DFA. And if more than one path for any input alphabet, either 0 or either 1, exists there in from any state, then it will be NFA. For this case, it is a DFA. So to minimize it, what we'll do first, first of all we'll count the number of states in our machine. So in our machine there are 8 states in all. तो हम यहाँ पर n-1 steps का एक ladder structure बनाएंगे. So what is n-1 here? 8 minus 1, that is 7. So 7 rows in extreme left and 7 columns in bottom, you can see here. Now, regarding the naming convention, if I say, I have told you earlier also, in when we are naming it, naming the rows, what we'll do, we'll exempt the first letter, the first state. We are going to exempt the first state, and the rest of the state will be written alphabetically like this. And if I am writing it in the column portion, what I'm going to do, I'm going to exempt the last state, that is H. So you must be getting my point here. I'm exempting the A, state A, that is the first one, and here I'm exempting the last state, that is H. Okay, so in this way, I will name this table, this ladder shaped table. And what I have to do next, in the next step, I will cross out all the row and column of final state. In here, in our machine, C is final state. So I will cross out the row and column of in front of C. I'll cross out all the boxes. Now, what I have to do, I have to find out those pairs which are not equivalent, and I have to cross out those pairs one by one. And after and at the last, I have to complete this whole process in 2 phases. Phase 1 is what we are studying just now,
I'll explain phase 2 after that. After phase 2, those boxes which are not yet crossed will be considered as equivalent state. Okay, so how to do it? Let us see. First of all, what we'll do, we'll take a pair. Just a second. Yes. So we'll take first pair AH, right? One by one, we'll be taking the pairs like AH, AG, AF, AE, as I explained you earlier also. In the first step, I have taken AH into consideration. Then after that, I will take AG in the consideration, AF, AE, AD, and since AC is already crossed out, I will not take it into consideration. AB, and then I'll move on to next column, that is BH, BG, BF, and so on. And in this way, I'll trace out each and every block for checking that whether this pair is equivalent or not equivalent. So how I will check this thing? Let us see. First of all, I will give A and H. Suppose I have taken AH in the consideration. Now what I am doing, I have given A and H input 0, and we have seen that after giving 0 as input, what we are getting BG as output. ठीक है, BG जो output मिलेगा वो हम check करेंगे कि ये non final state है या final state है. If both of them are non-final, or if both of them are final state, we'll leave that thing. ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे. फिर हमने A और H को 1 दिया, और A और H को 1 दिया, तो अगर आप देखें A को 1 देने पे F पर जाते हैं, H को 1 देने पर C पर जाते हैं. तो अगर आप देखें F और C एक नॉन फाइनल है और C फाइनल है. Whenever we get सच टाइप ऑफ सिनेरियो कि एक फाइनल और एक नॉन फाइनल आए, तो हम उसे नॉट इक्विवेलेंट बोलेंगे. और जैसे ही हमें कोई नॉट इक्विवेलेंट स्टेट, नॉन इक्विवेलेंट स्टेट मिलता है, we will immediately mark cross in that box. So I hope you understood how to mark cross in phase 1 in each and every pair. So let us move to another pairs also. So secondly, I have taken AG. So AG को consideration में जब लिया तो मैंने A और G को 0 दिया और A और G को 1 दिया. So when A and G are being supplied with 0, the answer which we are getting is B and G. Okay, this is the answer, B and G. Now we'll check what kind of states this B and G are. So B is a non-final state, G is also a non-final state. तो ये हमारे काम की नहीं है, because हमें नॉन इक्विवेलेंट स्टेट्स ढूंढना है. यहाँ पर दोनों नॉन फाइनल आ रहा है. Then we'll give the A and G states input 1. तो जब हमने 1 इनपुट दिया, तो आप देखें यहाँ पर F आ रहा है और यहाँ पर E आ रहा है आउटपुट में. तो F भी नॉन फाइनल है और E भी नॉन फाइनल है. ये भी हमारे काम का नहीं है. सो AG विल बी लेफ्ट ब्लैंक. हम कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों केसेस में सेम आउटपुट आ रहा है, नॉन फाइनल. ठीक है. सो व्हाट विल डू नेक्स्ट, we'll take third pair into the consideration. So I have taken AF into consideration. Now A को 0 दिया और F को 0 दिया, मैंने देखा आंसर आता है B and C. तो B यहाँ पर एक नॉन फाइनल स्टेट है, पर C एक फाइनल स्टेट है, और हमें यही तो चाहिए. जब भी हमको ऐसा नॉन इक्विवेलेंट टाइप का सिनेरियो मिलेगा, we will immediately mark a cross mark in that pair. जैसे ही मिला मुझे, मैंने क्रॉस मार्क कर दिया. मैंने 1 के लिए देखना जरूरी भी नहीं समझा, वैसे कोई जरूरत नहीं है. Here I have just illustrated just for the sake of understanding कि आप A को 0 दीजिए, F को 0 दीजिए. अगर यहीं पे मिल जाता है तो 1 देखने की जरूरत भी नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. किसी एक भी केस में अगर आपको नॉन फाइनल का केस मिलता है, you can immediately mark cross over there. ठीक. Then we'll move to next pair, that is AE. So AE को मैंने देखा, तो AE में आप देखिए A को 0 देने पर, E को 0 देने पे आता है B और H, which is non-final and non-final again. And A को 1 देने पर, E को 1 देने पर मैंने देखा F और F दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है, F and F. And F and F will always be equal because दोनों non-final हैं. तो यहाँ पर हम A और E को भी, AE वाले ब्लॉक को भी ब्लैंक छोड़ेंगे.
नाउ आई विल कम ऑन एडी। एडी में जैसे ही मैंने 0 सप्लाई किया, आप देखिए आंसर आता है BC। B is a non-final state and C is a final state. And as soon as I get this pair of non-final and final, I will immediately mark cross on that box of that pair. वन देखने की जरूरत भी नहीं है, आप छोड़ भी देंगे तो इट विल वर्क, कुछ कोई जरूर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द AB ब्लॉक बिकॉज AC इज ऑलरेडी मार्क क्रॉस। सो AB को मैंने लिया, AB को मैंने 0 दिया, देखा तो आंसर आ रहा है B और G। B और G का मतलब है नॉन फाइनल नॉन फाइनल, सो आई विल लीव दिस थिंग। एंड A और B को 1 दिया जब मैंने, तो मैंने देखा यहाँ पर नॉन फाइनल और फाइनल स्टेट आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक नॉट इक्विवेलेंट स्टेट है, और नॉट इक्विवेलेंट स्टेट है जिसका मतलब है कि यहाँ पर तुरंत क्रॉस मार्क कर दूंगा मैं। सो आई हैव मार्क क्रॉस इन AB ब्लॉक। इसके बाद एक कॉलम को आप रिप्रेजेंट करने के बाद, if I say it from the perspective of exams, you can write it similarly we can repeat this process for second, third and fourth and so on columns, and at last we'll get somewhat like this, ठीक है, somewhat like this we are going to get, and after that when you complete this whole thing, जब आपके पास पूरा लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए GH तक, यहां तक आप पहुंच जाए GH तक, उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होगा। नाउ व्हाट इज फेज 2? सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फेज 2। नाउ इन फेज 2 वी आर अगेन चेकिंग दीज ब्लैंक वंस, ठीक है, जो ब्लैंक पेयर्स हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास एक ब्लैंक है AG, एक ब्लैंक है AE, एक ब्लैंक है BH, another one is DF, another one is EG. So you have got 5 blank pairs with you. So you have to check it once more that whether these states are somewhere not equivalent or not. So let us move towards phase 2. So in phase 2 what we are going to do, first block which was blank was AG. So I have taken AG into the consideration and I have given A 0 to A and 0 to G both. So जैसे ही मैंने A और G को 0 दिया तो आप देखें यहाँ आंसर आता है BG, ठीक है। BG अब चेक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हुआ। नाउ आई विल चेक कि क्या BG में ऑलरेडी क्रॉस मार्क है। तो आप देखें कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर BG की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, BG में ऑलरेडी क्रॉस मार्क है क्या? यस, देयर इज अ क्रॉस ऑलरेडी मार्क्ड ऑन BG। अगर ऐसा है तो आपको AG में भी क्रॉस मार्क कर देना है, बिल्कुल बिना सोचे आप AG में भी क्रॉस मार्क कर देंगे। अगर इसके 0 या 1 किसी कोई भी इनपुट देने पर अगर जो आंसर आता है उसमें क्रॉस मार्क है तो आप इनपुट वाले पेयर में भी क्रॉस मार्क कर देंगे। अगर आउटपुट में क्रॉस मार्क है तो यू विल मार्क क्रॉस इन इनपुट पेयर आल्सो। यहाँ नीचे लिखा हुआ है इफ आइदर रिजल्ट्स BG or FE, you can see BG is the result which we are getting on supplying 0 as input and FE is the result which we are getting after giving 1 as input to this pair। एंड अगर इन दोनों पेयर में से किसी में भी एक क्रॉस मार्क्ड है आइदर इन BG और इन FE, हियर यू कैन नॉट, देयर इज नो FE हियर बिकॉज यहाँ FE के लिए ब्लॉक आप देखिए है ही नहीं, तो आपको BG ही चेक करना पड़ेगा। तो BG में अगर क्रॉस मार्क है इसका मतलब है कि इसकी वजह से आपका यहाँ पर भी क्रॉस मार्क हो जाएगा, ठीक। सो this is the method by which we are going to cross mark the states which are left blank after phase 1. Now second one is AE, so we'll check AE also, what will be done in AE। so just a second, yes, so AE की बात अगर मैं करता हूं तो अगर मैं AE को चेक करूंगा तो A को 0 देने पर B आता हूं, E को 0 देने पर मैं H आता हूं, और BH को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ब्लैंक है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो B और H आया 0 देने पर AE को, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है तो मैं छोड़ दूंगा। फिर मैं A को 1 देता हूं तो आंसर आता है F, और E को 1 देता हूं तो आंसर आता है F।
और एफ और एफ नाम, एफ और एफ का कोई पेयर है ही नहीं, ब्लॉक है ही नहीं। तो दोनों केसेस में जब क्रॉस मार्क नहीं मिला तो वी विल लीव दिस ए ई एज ब्लैंक। मैं छोड़ दूंगा इसको, मैं किसी भी तरीके से आइदर इन फेज 1 और फेज 2 क्रॉस मार्क नहीं कर सकता। देन आई विल कम टू बी एच, फिर मैं चेक करूंगा बीएच को। अगर मैं चेक करता हूं तो आंसर वही जो आएंगे, आप देखेंगे कि उसमें क्रॉस मार्क नहीं है, सो बीएच विल आल्सो बी लेफ्ट ब्लैंक। देन आई विल चेक डीएफ एंड ईजी, सो ओनली ईजी विल बी द ब्लॉक जिसको मैं क्रॉस मार्क कर सकता हूं, बिकॉज अगर आप देखें क्वेश्चन में तो ई को 0 देने पर हम एच पर आते हैं और जी को 0 देने पर हम जी पर आते हैं, ठीक है। तो जी एच हमें देखना है। So if I see GH में तो ऑलरेडी क्रॉस मार्क है, तो अगर GH में ऑलरेडी क्रॉस मार्क है तो मैं EG में भी क्रॉस मार्क कर दूंगा। सो हमारे पास एट लास्ट आफ्टर चेकिंग द पेयर्स इन फेज 1 एंड फेज 2 मेरे को मिले क्या, 3 ब्लॉक्स मुझे अभी भी मिले जो ब्लैंक है। इसका मतलब कि ये 3 जो पेयर्स हैं ये इक्विवेलेंट पेयर्स हैं। सो आई हैव फाउंड माय इक्विवेलेंट पेयर्स ऑफ द मशीन AE, BH and DF. So let us see what is to be done next. So यहाँ पर देखिए, here in this case new minimized machine will be following will have following 5 states. AE will be 1 state because the work which is being done by the state A and E separately can be done collectively also. मतलब A और E में से कोई एक स्टेट redundant है, अगर आप उसको मर्ज भी कर देंगे तो A और E वही काम करेगी जो A और E अलग अलग कर रहे थे। सो इन द सिमिलर वे BH की बात करूं तो B और H अभी तक जो सेपरेटली काम कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर मार्क कर दूं, मर्ज कर दूं B और H को, तो वो वही काम करेंगे जो सेपरेटली कर रहे थे। C को मैं नहीं कर सकता हूं, देयर इज नो वे टू मर्ज C विद एनी अदर स्टेट। DF इज द थर्ड ब्लॉक विच इज एम्प्टी, इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट स्टेट है, तो DF को भी मैंने मर्ज कर दिया एंड G विल बी रिटन सेपरेटली, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें इंस्टेड ऑफ 8 स्टेट दैट इज ABCDEFG, ये जो 8 स्टेट्स थी आपके पास, इनकी बजाय अब मर्ज होने के बाद हमें कितनी स्टेट्स मिल गई, 5 स्टेट्स मिल गई। तो समवेयर आर मशीन गॉट मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज्ड कैसे करेंगे आप, तो आप ये 5 की 5 स्टेट्स जो है AE, BH, C, DF एंड G, इनको आप यहाँ पर ट्रेस करेंगे। आफ्टर दिस आपको क्या करना है, अगर आप देखें तो A को 0, यहाँ पे इनिशियल कौन सा बनेगा, तो जो आपके एक मशीन में, जो आपके क्वेश्चन वाले मशीन में इनिशियल है वही वाला A इनिशियल है। सो AE विल बी इनिशियल बिकॉज A एंड E आर नॉट, नाउ A एंड E आर नो मोर टू डिफरेंट एंटिटीज, दे आर बीन मर्ज्ड इन सिंगल एंटिटी। तो A का काम वही है, तो इनिशियल स्टेट हुआ। अब मैं देखता हूं A को 0 देने पर और E को 0 देने पर क्वेश्चन में क्या होता था। तो अगर मैं देखूं तो आप देखिए A को 0 देने पर मैं B पर जाता था, राइट, और E को 0 देने पर मैं H पर जाता था। यस, सो आंसर इज BH। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर BH भी मर्ज हो चुका है। तो अगर आप देखें तो अगले स्टेट में क्या होने वाला है, मैंने AE को 0 देकर BH पर एक ट्रांजिशन बना दिया। सिमिलरली आप 1 के लिए देखेंगे तो अगर आप A को 1 दें तो F पर जाते हैं, और अगर आप E को 1 दें तो भी F पर ही जाते हैं। तो जहां भी स्टेट F होगी, हियर इट इज एट DF, तो F और D अब अलग नहीं है, अब दे आर वर्किंग कलेक्टिवली। सो बाय टेकिंग 1 वी विल मूव टू DF। सो अब आपकी मशीन में DF और BH बन गए। तो चलिए एक एक करके BH का देखते हैं। पहले B को 0 देने पर हम कहा जाते हैं, G पर, और H को 0 देने पर भी G पर। तो आप देखिए मैंने BH से G की तरफ एक 0 का ट्रांजिशन बनाया। B को 1 देने पर मैं जाता हूं C पर, और H को 1 देने पर भी मैं C पर जाता हूं। तो एक मैंने ट्रांजिशन 1 के लिए C पर बनाया। नाउ आई विल ट्रेस आउट द ट्रांजिशन ऑफ DF स्टेट। तो D को अगर मैं 0 देता हूं तो आप देखिए C पर जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे, तो D को 0 देने पर मैं C पर जाता हूं, और F को 0 देने पर भी मैं C पर जाता हूं। तो DF से एक 0 का ट्रांजिशन C के लिए मैं बनाऊं।
देन मैं 1 ट्रांजिशन देखूंगा डीएफ का। तो डीएफ का अगर ट्रांजिशन देखें 1 के लिए, तो आप देखिए डीएफ का डी का 1 ट्रांजिशन क्या होगा। तो डी को 1 देने पर मैं जाता हूं जी पर, यस ये आया जी पर, और एफ को 1 देने पर मैं फिर से जी पर जा रहा हूं। तो आपको देखिए यहाँ पर आंसर मिला जी। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेस करूं तो डीएफ से मैंने एक 1 का ट्रांजिशन जी पर बना दिया। नाउ आई विल ट्रेस आउट द ट्रांजिशन ऑफ सी एंड जी वन बाय वन। तो सी के लिए देखते हैं, सॉरी जी के लिए देखते हैं। तो जी को 0 देने पर जी पर ही जाता है, तो मैंने वैसा ही वैसा ट्रेस आउट कर दिया। जी को 1 देने पर हम जाते हैं ई पर, तो यहाँ पर अब ई का काम ए ई कर रहा है, तो जी को 1 देकर मैं ए ई पर जा रहा हूँ। देन सी की बात करूं तो सी को 0 देने पर मैं ए पर जाता हूं, तो ए का काम अब ए ई कलेक्टिवली कर रहे हैं, तो सी को 0 देकर मैं ए ई पर चला गया, और सी को 1 देने पर मैं वापस सी पर आ रहा हूं, तो मैंने एक सेल्फ लूप सी का बना दिया। एंड आफ्टर दिस आई विल मेक फाइनल स्टेट। तो जो क्वेश्चन में फाइनल स्टेट थी सी, यहां पर भी मैं उसी को फाइनल स्टेट बना दूं। एंड इन दिस वे आई हैव गॉट माय मिनिमाइज्ड फाइनाइट ऑटोमेटा, जो मुझे पहले क्वेश्चन में 8 स्टेट्स थे, वो अब मिनिमाइज होके 5 स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए। अगर मुझे इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है तो इट इज वेरी इजी। ए विल बी द इनिशियल स्टेट, बी एच सी डी एफ, और मैं इसी को देखकर मैं ट्रेस आउट कर सकता हूँ कि ए को 0 देने पर मैं बी एच पे आ रहा हूँ, ए को 1 देने पे मैं डी एफ पे आ रहा हूँ, एंड सो ऑन। यू कैन इजिली ट्रेस आउट ऑल दीज थिंग्स in a simple way. So I hope you have got this thing.